Hello everyone, myself Shayan Bhadur, your agent of happiness. So I'm back with this new episode. In today's episode, I'm going to talk about something which is very very sensitive. लोग ज़्यादातर खुल के इस विषय में बात नहीं करना चाहते. So there's this hush hush about it. लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग अगर किसी दूसरे एंगल से ले इसके ऊपर भी कोई बात करता है खुल के, दोस्त मजाक उड़ा सकते हैं. It might instigate someone, family members or friends might get over possessive, people might have a feeling of pity, typical वो बेचारा वाला feeling. यही सब हमारे ज़हन में आते रहते हैं. You know what I'm talking about? I'm talking about depression, hopelessness and feeling of suicide. When we talk about physical wellness, we are very very serious about it. कोई भी शरीर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है, we readily take action. We go to a doctor or we visit a chemist. वहाँ से हम लोग दवा खरीद लेते हैं, चाहे वो पेट दर्द हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो. But when it comes to mind and emotions, we generally don't talk about it because we are not comfortable talking about it. बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हम लोग कभी भी इस चीज़ को खुल के किसी से ना शेयर करते हैं, ना कोई प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं. और अगर किसी की राय भी लेते हैं, अगर हम लोग दोस्त या फैमिली से बात भी करते हैं इस चीज़ को लेके, ज़्यादातर जो मैसेजेस या सजेशंस आता है वो कुछ इस प्रकार है कि हमें ठीक से सोना चाहिए या ठीक से सो लो, 8 घंटे का नींद पूरी कर लो, शायद तुम स्ट्रेस में हो, ये सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा घूम लो, 2 ड्रिंक लगा लो, okay, hook up with someone. So all these kind of suggestions we generally get. We are so careless about psychological wellness. But these are not solutions, my friends. And now it is high time that we start talking about it openly. समय आ गया है कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी सेम प्रायोरिटी दें. Our state of mind is equally important as our health. Let us first understand why we feel mentally upset or sad or depressed. इसकी वजह क्या है? हम सभी जानते हैं कि how a child takes birth, right? Race and struggle starts much before our birth. The act of taking birth itself is such a struggle. So we didn't come into this world easily. So how can we expect life to go easily? अगर बर्थ के टाइम में इतना स्ट्रगल करना पड़ा है तो लाइफ के टाइम में भी करना पड़ेगा, right? Another reason might be the present situation. We are going through a difficult time because of this pandemic, COVID-19. Corona is forcing us to stay alone. Lockdown के वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे. And this is the reason that we tend to miss our school, our office, our friends, our colleagues. We miss shopping, we miss our relatives and so on. आज से कुछ 5 महीने पहले जब कोरोना का नाम कोई नहीं सुना था, तब तो हम लोग ये सब फील नहीं करते थे. What is the change in the lifestyle? चेंज क्या हुआ है? फर्क क्या है 5 महीने पहले और आज में? तब जब सारे साधन मौजूद थे, तब जब हम लोग बाहर जा सकते थे, तब हमको अपनी प्रायोरिटीज की पड़ी थी. Then we used to say that we need our own me time, we don't want to go and talk to people, मुझे थोड़ा अकेले रहने दो, right? अपना स्पेस चाहिए. We used to complain our parents about priority, about privacy. बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है. तो अभी क्या हुआ? Now that we are forced to stay alone, अभी बात समझ में आई. Now we are craving to go out and meet people. इसे याद रखना दोस्तों, इसे भूल मत जाना. This proves that human beings are social animals, right? And this is the importance of human touch, human contact. Then why is it that people are getting into depression? Why is it that the suicide rates have increased? और एक वजह ये हो सकता है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गया है जिसकी सल्यूशन नहीं है हमारे पास, एंड वी वांट टू रन अवे फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स.
हमें लगता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो लाइफ से ही भाग लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं ये लाइफ, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं. इफ़ वी थिंक दिस इज़ एन एस्केप रूट, कैन वी बी एब्सोल्युटली श्योर वी विल एस्केप दिस वे? अगर आफ्टर लाइफ बोल के कुछ है, ज़िंदगी के बाद अगर कुछ है, देन हाउ कैन यू बी श्योर कि ये जो सारा प्रॉब्लम्स जिससे हम अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें चेज नहीं करेगी? यू विल बी चेज बाय योर प्रॉब्लम्स देयर एज वेल. क्या सही में पीछा छुड़ा पाएंगे हम लोग? अगर हम लोग श्योर नहीं है, तो हम लोग ये स्टेप कैसे चूज कर लेते हैं? रीजन नंबर 3 कैन बी व्हेन इट इज रियली पेनफुल. इतना ज्यादा पेन कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे अपने आप को. व्हेन लाइफ बिकम्स मोर पेनफुल देन डेथ. लेकिन क्या सही में ऐसा हो सकता है कि जीवन मृत्यु से भी ज्यादा पेनफुल हो जाए? मैं आपके साथ एक इंस्टेंस शेयर करता हूँ. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन बिफोर. तो मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था. ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी थी एंड इट वाज एक्सेलरेटिंग इट्स स्पीड. इट वाज स्पीडिंग अप when suddenly one of the passengers came and he pulled the chain, the emergency brakes. जैसे ही उन्होंने वो चेन को खींचा, इमरजेंसी ब्रेक पुल किया, तो ट्रेन एक बार में नहीं रुकी. एक बार में ट्रेन रुकती भी नहीं है. तो there was this huge hiccup. The entire compartment was shaking like anything and the luggages were falling from here and there. लोग गिरने लगे, मतलब लोग डरने लगे, चिल्लाने लगे. There was this chance of the train getting derailed as well. And then finally the train stopped. You know, anything which is unnatural doesn't happen easily. It's very painful. हमारी जो जिंदगी है वो इस ट्रेन जर्नी की जैसा है. So if you want to stop it unnaturally, it's going to be very very painful. So life cannot be more painful than death, my friends. Especially अगर वो जबरदस्ती किया, unnatural. And something that we have not started, do we have the right to finish it off? ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये हम लोगों ने नहीं दिया है अपने आप को. This is a gift that we got from our parents. We didn't choose it. So now that they have given this gift, they have started it. So we cannot put it to an end because we have not started it. हम लोग नहीं कर सकते हैं. Reason number 4 ये हो सकता है कि if it is for somebody as a payback, बदला, you know, revenge, stubbornness, ये जिद्दी है, जिद पे है, ऐसा एक जिद था वो पूरा नहीं हुआ तो गुस्से के मारे अपने आप को खत्म कर देंगे. या मान लीजिए कि I really want to take revenge on someone. किसी के ऊपर अपसेट है या गुस्सा है, हताश है, बदला लेना चाहते हैं, किसी को सफ़र करवाना चाहते हैं, but you won't be there to see the end result of it. तो फिर ये ऐसा कैसा बदला ले लेंगे आप? अगर अपने आप को ख़त्म करके किसी के ऊपर बदला लेना है, तो उसे देखने के लिए आप खुद जिंदा नहीं रहेंगे. जब हम खुद ही नहीं रहेंगे या ये बदला देखने के लिए, देन अपने आप को क्यों मार दें? अगर बदला लेनी ही है तो खुद अपने साथ कुछ इतना अच्छा करते हैं कि जिससे हम बदला लेना चाहते हैं वो भी देख के जलेंगे. तब पूरा होगा बदला, तब होगा बदला पूरा. रीजन नंबर 5 कैन बी होपलेसनेस, utter despair. कोई आशा नहीं. You know, what should we do when we are in such a position? We need long-term contemplation. अगर कहीं भी उम्मीद नहीं दिख रहा, तो किसी का सलाह ले ले. Talk to people, share करो. Let others see your vulnerability. कोई नहीं चाहता ये, या कोई नहीं मानता कि आप परफेक्ट हैं. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ओके? सो अगर कोई कमजोरी है तो लोगों से मत छुपाओ. नो वन एक्सपेक्ट्स अस टू बी फ्लॉलेस, सो वी कैन शो आवर फ्लॉज टू अदर्स. इट इज परफेक्टली ऑल राइट. वी आर ह्यूमन बीइंग्स. एक बहुत पॉपुलर कहावत है इंग्लिश में, टू एयर इज ह्यूमन. इंसान से गलती होता है, एंड इट इज परफेक्टली ऑल राइट if we show our vulnerability to people.
नो वन एक्सपेक्ट्स अस टू बी परफेक्ट, राइट? अब माउंटेनियर्स को देखे हैं जो बहुत ऊंची पहाड़ की शिखरों में क्लाइंब करते हैं, ऊंची पर्वत में जाते हैं. सो ऑल दीज माउंटेनियर्स दे कैरी विद देम दिस आइस एक्स. सो अगर ऊंची पहाड़ में से कोई उनमें से गिरने लगता है, दे ऑलवेज स्प्रेड देयर हैंड्स टू सीक हेल्प, एंड इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू सीक हेल्प. And you will be surprised at how many hands will reach out to you. जब वो गिरते हैं, अगर आसपास दूसरे कोई माउंटेनियर नहीं रहता उन्हें हेल्प करने के लिए, पता है वो क्या करता है? वो अपना आइस एक्स लेता है एंड ही स्ट्राइक्स विथ ऑल हिज माइट, और उस आइस एक्स से he hangs there, he hangs in there, he saves himself. So even you are having an emotional fall, you're looking for help, you're not getting it, you strike it hard with this ice axe and hang in there. बस hope, उम्मीद मत खोना. This is something which is the most important thing in life. क्रैक जरूर मिलेगा, स्कोप जरूर मिलेगा, और उपाय भी मिलेगा. बस जिंदगी से हाथ मत धो लेना दोस्त. Thank you so much, friends. This brings us to the end of this episode. If you like this episode, you can subscribe, like and comment my video. Subscribe button में भी press कर सकते हैं. बहुत जल्दी मैं फिर से लौटूंगा with another episode of Agent of Happiness, and this is my own humble way to spread happiness. So till then, keep on smiling, stay happy, stay positive. Goodbye.